whichever is less है ना 20 or 2/3 whichever is less 2/3 of the total members or 20 whichever is less. ये हम लोग इसमें क्यों नहीं लिखा है, ये इसके अंदर क्यों नहीं लिखा है वो पॉइंट, ऐड क्या ठीक है, बट ये पॉइंट कोरम करके एक पॉइंट डाल सकते थे. Correct. One is the rules keep changing. Second is the rules are all not same for all categories of cooperative societies. It is different for हम लोग जो बात कर रहे हैं 2/3 और 20 whichever is less, that is for cooperative housing society. It is not for a cooperative bank. Cooperative bank का अलग. हम लोग एग्जाम्पल देते समय दे सकते हैं कोरम. इसके वजह से इसमें स्पेसिफिकली कोरम मेंशन नहीं है. ठीक है, that you have to refer the rules or the bylaws. bylaws में जो लिखा है that will be part of your quorum. आगे क्या एजेंडा होना चाहिए, ऑडिटर के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, इम्पोर्टेंट डिसीजन, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, ये सब के बारे में डिस्कस करते करते बजटिंग एवरीथिंग होने के बाद में देन रेजोल्यूशन पास करके यू हैव टू क्लोज. फिर उसके बारे में अगर इफ इट इज नॉट कॉल्ड within this particular period, then the committee is liable for action under 75(5) and shall be disqualified. Authorized officer shall be appointed who will take over, conduct the elections within 6 months, hand over the committee will be dissolved, elections will be conducted, handing over will be done. ये हो जाएगा 3 पेजेस तो आराम से होएगा ना. ये हो गया, ये एग्जाम में आएगा मुझे ऐसा लगता है. डेट हो गया आपका सर. गो टू 76. कितना बजे तक ये खत्म करना है एक्चुअली, आप बताइए जब तक आप सिखाना चाहोगे. 4:40 हुआ है. हाँ 6 बजे तक मैं ले नहीं पाऊंगा, मेरा 6 बजे दूसरा लेक्चर है. 5:15 20 मिनट और क्या है एटलीस्ट ये खत्म कर देते हैं. तक करेंगे, हो जाएगा 20-25 मिनट में हो जाएगा 80 तक. तो 6 बजे दूसरा लेक्चर वैल्यू दे देगा. ये अभी रेस्ट ही तो ले रहा हूँ. हाँ ये रेस्ट ही है ना. आपके साथ में हंसी मजाक चल रहा है तो रेस्ट ही. क्या बोल रहे थे? 76 special general body meeting. The special general body meeting may be called at any time by the chairman or by majority of committee and shall be called within 1 month on requisition in writing of 1/5 of the members of society or of members of numbers of which is specified in the bylaws for the purpose whichever is lower, or at the instance of the registrar, or in the case of society which is a member of federal society at the instance of the committee of such federal society. अभी इसके अंदर 4 लाइन के अंदर 8 पॉइंट है. वापस सिमिलर इंटरप्रिटेशन आपको एक लाइन का करना है. तो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा. अब इसके बारे में भी पॉइंटर्स लिख के रखो. स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग इज एनी टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग वाज once in a year. स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग एनी टाइम एट द इंस्टेंस ऑफ द चेयरमैन. इसका मतलब क्या है? एट द इंस्टेंस ऑफ द चेयरमैन मतलब कैन बी कॉल्ड बाय द चेयरमैन. उसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? कैन बी कॉल्ड बाय चेयरमैन मतलब क्या है? हाँ इन केस दी इमरजेंसी नहीं, ऐसा लिखा नहीं है. नहीं सिंपल है. अगर कमिटी का और किसी को भी नहीं कॉल करना है तो अकेला चेयरमैन डिसाइड कर सकते हैं कि मैं एसडीएम ले रहा हूँ विदाउट एनी रेजोल्यूशन पास बाय द कमिटी.
the chairman can singularly call for an SGM. Will you call? Yes, there is a provision at any time by the general body, may be called at any time. Any time लिखा है ना, कभी भी अपने मर्जी पे, अपने मतलब से नहीं बोलना चाहिए, अपने हिसाब से, मतलब he does not need to take permission from anybody. A chairman any time can call for an SGM. Sole decision, singularly he can call without consulting anybody. First point क्या है? SGM can be called at any time. SGM can be called any number of times. Third is chairman singularly can call. Fourth point is majority of the committee members can call. What is meant by majority of committee members? Two-third का लिखा है. Always majority मतलब simple majority. What is majority of committee members? How can the members call? More than 50%. How will they call for SGM? 51%. Percentage छोड़ दो. How will they call for an SGM? Requisition to whom? Chairman or the secretary. So these people, majority of the committee members, कभी आएगा ये situation? Chairman not willing. When the chairman or the secretary is not willing to call, and if the members of the committee feel that a special general body meeting has to be called, so they can write to the chairman or the secretary, and then on receiving the requisition by more than majority, within 1 month he has to call. ये point, next point. Who can call? Chairman can call. Second point, majority of committee members can call. Third point is on the request of 1/5 of the members of the society. मतलब 1/5 total members 100 है, तो कम से कम 20 लोग ने रिक्वेस्ट दिया कि ऐसा एक पॉइंट है जिसके ऊपर जनरल बॉडी, स्पेशल जनरल बॉडी होना चाहिए हमारा सोसाइटी का, तो उन लोग रिक्वेजिशन देंगे राइटिंग में, एंड ऑन रिसीविंग दैट इन राइटिंग the committee has to call for general body. They cannot say no. But 1/5 चाहिए, 20% लोग चाहिए. Fourth, the registrar can also call for SGM. आपका सोसाइटी का मीटिंग रजिस्ट्रार बुला सकता है. कभी बुलाएगा? SGM कभी बुला सकता है रजिस्ट्रार, और क्या क्यों बुलाएगा? Some member of the society may approach the registrar, writing to him, complaining to him कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, हमने बहुत बार डिस्कस किया, ट्राई किया, SGM बुला ही नहीं रहा है लोग, तो आप थोड़ा डायरेक्शन दीजिए और बुलाने को बोलिए. तो रजिस्ट्रार अगर कंप्लेंट वगैरह मिलता है, तो then he will direct the committee to call for an SGM. ठीक है? This is the next one. It can be anybody. The registrar has to feel. Registrar is satisfied. If the registrar is satisfied, he can call. ठीक है ना? तृप्त होना चाहिए. तृप्त हिंदी का शब्द तृप्त होना चाहिए. तो कोई नहीं होता है. Next. In case of society, if it is a member of the federation, तो क्या बोलते हैं इधर? Which is a member of the federation at the instance of the committee of such federal society. फेडरेशन है, आप जो फेडरेशन से आप जुड़े हुए, हमने बायलॉ नंबर 6 हाउसिंग सोसाइटी का देखा, उसमें क्या लिखा था? कंपल्सरी एसोसिएशन टू अ फेडरेशन. देखा था ना, इसमें भी देखा था. कौन सा पॉइंट था वो? सुबह हमने पढ़ा था फेडरल सोसाइटी का बारे में. हमने बोला था कि कोई ना कोई फेडरेशन के साथ में जुड़ना चाहिए. उस फेडरेशन का अगर कमेटी को लगता है कि आपका सोसाइटी में कुछ तो लफड़ा है, गड़बड़ है, और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना है, तो उस फेडरेशन का कमेटी भी आपका SGM बुला सकती है. तो ये there are 6 different types or ways by which SGM can be called. Always remember, you have to write that whenever an SGM is called, it has to be on a specific point only. This is a special general body meeting, so there cannot be more than one agenda. It always has to be a one-point agenda. Meeting has to be always a one-point agenda. It cannot be multiple points. No multiple discussions. Chairman or committee or special meeting is to permission. Not necessary. Only one-point agenda in SGM. Why? Can anybody say why? ठीक है, स्पेशल है, बट ये क्लास के अंदर पढ़ते पढ़ते आपको समझ में
में आना चाहिए, आया होगा शायद, कि क्यों 1 पॉइंट एजेंडा है। क्लियरली किधर लिखा नहीं है, बट प्रोसीजरल या ये पॉइंट जो है, ये अभी 2-3 हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अंदर ही है, पॉइंट कवर हुआ है, बट एक्सप्रेसली कवर नहीं हुआ, हिडन है उसके अंदर। आप इसका रिक्वेजिशन पे 1/5 ऑफ द मेंबर्स में देखो आप क्या लिखा है। On requisition in writing of 1/5 of the member society, members of which is specified in bylaws for the purpose for which it is called. So that purpose, अगर suppose एक purpose है, दो purpose है, और suppose आज मेरे पास दो purpose है, 1/5 of the members जब आप call करते हैं, तो every person has to have a common agenda for calling that agenda. अगर 1/5 वाले के पास दो multiple agendas है, तो 1/5 नहीं होगा, तो हाफ हो जाएगा ना। अब नहीं समझे, समझा कि नहीं समझा? वैसे एक एजेंडा रहेगा तो उसमें 20 लोग एक ही एजेंडा के ऊपर काम करेंगे तो ही वो 1/5 होगा। You got my point? तो it has to be a single point agenda. If there are 2 agendas, then 40% हो जाएगा. If you have 3 agendas, 60% हो जाएगा. So if it is mentioned 1/5, then it has to be only one agenda. There cannot be two purposes. For the purpose singular दिया है, purposes नहीं दिया है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। Suppose another purpose will be there. दो purpose So रहेगा। you call for another SGM. दो बार। You can call any number of SGM. तो fast purpose मत रखो ना इतना fast। आपको जरूरत है तो ही आप बुलाओगे ना। देखो हर समय इतना बड़ा कोई SGM के लिए एजेंडा इमरजेंसी हर समय नहीं होता। हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, बट एक्चुअली तो होता नहीं। एंड फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट इज कॉल्ड, इट इज नॉट फॉर द पर्पसेस फॉर व्हिच इट इज। सिंगुलर है ना, सिंगुलर एक ही एजेंडा है, एक ही पर्पस हो सकता है, और एक पर्पस 20% वाला किया बोलेगा तो एक ही एजेंडा 20 लगे कैसा। वाइड एबनिशन नहीं होगा, वाइडेबल होगा, वाइडेबल होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? At the discretion of the At the discretion of the court. Void ab initio, void ab initio और voidable, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। void मतलब null and void, zero. void ab initio मतलब शुरू से जितने भी किया था सब void. void मतलब उस particular point is null and void. void ab initio मतलब initial, ab initio मतलब initial stages से जब से कुछ भी कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो कार्यक्रम स्टार्टिंग से लेकर आज तक पूरा खत्म। और वाइडेबल मतलब कोई जाकर के कंप्लेंट किया और कोर्ट ने बोला कि नहीं ये गलत है, तो इट इज अ वाइडेबल इशू। तो ये तीनों में फर्क है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, खारिश ही हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज बिकमिंग नल एंड वाइड ओनली, बट डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज वेरी डिफरेंट। इसका नाम दिया हुआ तो क्या है, मोटा मोटा इट कैन बी ओनली वन एजेंडा। यू हैव टू इंटरप्रेट दैट इन दैट मैनर, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज ने इस पर्टिकुलर को लेके कोर्ट में गया है, कोऑपरेटिव कोर्ट, और जीता है। दो एजेंडा आपने कैसा लिया, एक एजेंडा तो मेन लिख दिया और दूसरा एजेंडा में लिख दिया एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चार्ज, तो क्या हो गया, इतना बड़ा एजेंडा डाल दिया तो अलाउड नहीं है। यू हैव टू हैव ओनली स्पेसिफिक एजेंडा बिकॉज़ इट्स अ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। You cannot have more than one. Special मतलब हर समय एक ही रहता है, आप समझ। Special is always only one. Super special ऐसा कुछ नहीं। Special is always only one. तो special agenda general body मतलब one point है। आपको लगता है फिर भी दो special है, तो आप दो बुला लीजिए, दो SGM बुला लीजिए। Every Sunday क्यों? Every hour। 10 बजे को जैसा लेक्चर में पीरियड होता है 10 से 2, 3 से 5, वैसा 10 से 11 एक एसडीएम और 11:30 से 12:30 दूसरा एसडीएम नहीं खत्म होते। बोल रहा हूँ लेक्चर जल्दी खत्म होता है, एसडीएम तो खत्म ही नहीं होता है। एक दिन तो चलता है इसका। चलता है ना, एक दिन तो आपको खर्चा कम हो गया ना, आपको वो भी आंसर दिया, आपको खाली तो कंटिन्यूटी में दे रहा है ना आपको, ठीक है। Anyway, where an officer or a member of the committee whose duty was to call such meeting without reasonable excuse fails, the registrar may order declare officer of the member disqualified
फॉर 5 years एंड इफ ऑफिसर उसको फाइन भी लगा सकता है। जैसा एजीएम में पॉइंट था वैसा सिमिलर पॉइंट एसजीएम में भी है। If a suspension committee or society is not called in accordance with the requisition, registrar or any person authorized by him shall have power to call for such meeting। वो तो हमने पढ़ा। Registrar shall have power to order the expenditure incurred in calling for meeting shall be paid out of the funds of the society or such persons who, in the opinion of the registrar, were responsible for the refusal to failure to convene the meeting। देखिए अगर आपको सीधे तरीके से बोला एसडीएम कॉल करो, आपने किया नहीं, फिर आपको खर्चा करके रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ा और रजिस्ट्रार ने बोलने के बाद में कॉल किया, तो कमेटी के ऊपर पेनल्टी ये भी लग सकती है कि इंडिविजुअली आप ये खर्चे का जो भी है आप उठाओ, वो भी पॉइंट है तो उठा सकते हैं। अभी हमारा जो सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी का बैला है उसमें रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो वाला पॉइंट है ना, रिक्वेस्ट ऑफ 1/5 ऑफ द मेंबर्स वाला पॉइंट में कोरम और ये बताया गया कि कोरम क्या होना चाहिए। वहाँ पे वो 2/3 ऑफ द कोरम और 20 whichever is less वो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मीटिंग आप कंडक्ट ही नहीं कर सकते, वैसा उसमें लिखा है। बाकी सब जनरल बॉडी मीटिंग में एक क्लास नहीं है, बाकी सब जनरल बॉडी मीटिंग में सिर्फ मीटिंग शुरू करने के लिए है, स्टार्ट करने के लिए। अगर स्टार्ट करने के लिए आप एडजर्नमेंट करते हो और उसके बाद में भी 20 और 2/3 नहीं होता तो यू कैन कंडक्ट, यू कैन स्टार्ट द एसडीएम और एजीएम एंड यू कैन कंडक्ट दैट। बट रिक्वेजिशन वाला जो एसडीएम है उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर 2/3 या 20 नहीं है तो आप वो एसडीएम नहीं कर सकते हो, उसको वहीं का वहीं क्लोज करना पड़ेगा। एक पॉइंट स्पेशल पॉइंट है हमारे हाउसिंग सोसाइटी 77 है ना, अभी आपका टाइम से भी 5-7-3-4 मिनट है। Acts of the society is not to be invalidated by certain defects। देखिए अभी सोसाइटी कमेटी गुड फेथ में कुछ काम किया है, उनको नहीं मालूम था कुछ गलती हो गया उनसे, जानबूझ के नहीं किया, थोड़ा प्रोविजन में 19-20 हो गया, तो उसकी वजह से आप किसी को डिफॉल्ट या कुछ पेनलाइज वगैरह नहीं कर सकते। इज व्हाट इज 77 नो एक्ट डन इन गुड फेथ बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट रूल्स वगैरह वगैरह सब्सिक्वेंटली पास होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। द रजिस्ट्रार शैल डिसाइड वेदर एन एक्ट डन इन गुड फेथ इन परसेंट ऑफ द बिजनेस, उसके पास फाइनल डिसीजन है। अगर आप कंप्लेंट भी करते हो उसके बाद में तो रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी फाइनली टू डिसाइड वेदर ये गुड फेथ में किया गया है कि नहीं किया। 77A टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर कमेटी, जो हमने बोला था 77A डिस्कस किया था, उसमें 77A क्या बोलता है कि ऑन दी इफ दी वेयर द रजिस्ट्रार इज सैटिस्फाइड, देखो देखिए सैटिस्फाइड ही लिखा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सुनो। इफ द रजिस्ट्रार इज सैटिस्फाइड दैट ए a provisional committee has failed to take necessary arrangements for holding elections, उनको इलेक्शन करके 1 साल के अंदर देना था, उन्होंने नहीं किया। और at the first constitution of the committee of any society there is a failure to elect or any of the members of the committee, all or any of the members, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन होता है और उस समय पे कमिटी फॉर्म नहीं हो रहा है, शॉर्ट गिर रहा है, कोरम नहीं बन रहा है, the term of the committee of the society has expired and failure to elect the members, election कॉल नहीं कर पाए, आपका टर्म खत्म हो गया, ठीक है। और there is a stalemate in the constitution of the committee, constitution of the committee मतलब constitution पढ़ा हम लोग अभी, हाँ सोसाइटी इलेक्ट हो गया, कमेटी इलेक्ट हो गया, बट आप चेयरमैन सेक्रेटरी को चुन नहीं पा रहे, कोई बनने को तैयार ही नहीं, वो भी होता है। तो दैट इज ऑल्सो मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी अगर फेलियर हुआ तो एनी कमिटी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग ऑफिस, गुंडागर्दी चल रहा है, आप कमेटी में कैसे आओगे, नहीं आ सकते, अंदर नहीं जा सकते, दो तीन लोग डिफरेंट ग्रुप्स रहता है ना। The new committee has failed to enter office on the date of which the term of the existing committee has expired, मतलब आपको इलेक्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी कर दिया, सब कुछ आपके पास दे दिया, फिर भी आप रोल आपका ले ही नहीं रहे, आप शांति से बैठे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो ऐसे कमेटी। Where more than one group is claiming to be a constituted committee, ये मैं बोलता हूँ मैं भी चेयरमैन हूँ, दूसरा आदमी आके बोलता नहीं मैं भी चेयरमैन हूँ, तो इसमें डिस्प्यूट है। तो इन ऑल सच कंडीशंस, ये भी इम्पोर्टेंट है 77 ये आपका शॉर्ट नोट्स में 3 मार्क का आ सकता है। क्या है इसमें, क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथराइज्ड ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए क्या क्या वायलेशन, कौन से सिचुएशन में इन लोग अपॉइंट होएगा, तो कभी होएगा द रजिस्ट्रार में इधर सो मोटो,
जब रजिस्ट्रार को समझ में आए कि ऐसा कुछ चल रहा है सोसाइटी में, तो विदाउट एनी कंप्लेंट सो मोटो एक्शन ले सकता है। और एन एप्लीकेशन फॉर अ मेंबर, एनी मेंबर और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू बी मेंबर ऑफ द कमिटी टू फिल द वैकेंसीज। देखिए अभी रजिस्ट्रार के पास पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि कमिटी के अंदर ही किसी मेंबर को एक बोर्ड बना के, 3 लोगों का बोर्ड बना के उसको बोल सकते हैं कि एक कमिटी फॉर्म नहीं हो रहा है, आप तीनों चलो और इलेक्शन कंडक्ट करो और नया कमिटी को बिठाओ। और सेकेंड ऑप्शन है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर ला सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो सेकंड ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बिठाना रहता है, बट इन लोग बाईपास करते हैं। आपने जो सवाल किया यही था कि आपको अगर नहीं पसंद है तो कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि बोर्ड बनो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन उसको बॉडी बनाना है, आपके कमेटी सोसाइटी के मेंबर्स को लेके उसको बोर्ड बनाना। फर्स्ट ऑप्शन वही है। वो बोर्ड भी नहीं बनता है तभी जाकर के उसको ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट कर। तो ये भी आपका एक डिस्प्यूट का मामला है, कोर्ट में जाओगे तो आपके फेवर में आएगा। नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम ऑथराइज्ड ऑफिसर विल कम, एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर या बोर्ड जो भी आता है they have to conduct the elections in 6 months as we read earlier and hand over the society का functioning back to the society। ये है 77A। ये कितना बचता है? 78 to 80। 5 मिनट में खत्म कर सकता है, कर दो। 5 मिनट ही लगेगी, ज़्यादा नहीं है। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड नहीं। फास्ट फॉरवर्ड कभी करता ही नहीं। 5 मिनट 5 to 7 मिनट्स मैक्स। मेरे को भी जाना है, I will not be also be able to wait for one। मैं 6:15 कर सकता हूँ, लेट हो जाए। 38, 79, 80 ये सिंगल से